आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, ताकि आप अपने पेपर में जो भी एमसीक्यू आए उसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के लिए बल्कि अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए भी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज डेवलपिंग अ पर्सनैलिटी so as to create a strong positive impression about dash with a targeted group, and the options are self, others, both A and B, and none of the above, and the right answer is self. व्यक्तित्व विकास का अर्थ होता है एक व्यक्तित्व का विकास करना, ताकि लक्षित समूह के साथ स्वयं के बारे में एक मजबूत और सकारात्मक धारणा बनाई जा सके। It is very important to maintain one's personality to prove in a dash run. Short, long, both A and B, and none of the above, and the right answer is long, क्योंकि लंबी दौड़ में खुद को साबित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। Next question is, skill are required through dash and dash. A, practice, B, patience, C, both A and B, and D, none of the above, and the right answer is both A and B, क्योंकि कौशल जो है वो अभ्यास और धैर्य दोनों के माध्यम से अर्जित किया जाता है, इसलिए A और B दोनों ही सही हैं। So what is personality development? To develop personality, to create a strong positive perception about oneself, to teach leadership skills to cadets, to teach decision making and problem solving skills to cadets, and all of the above. And the right answer is all of the above, क्योंकि व्यक्तित्व विकास अपने बारे में एक मजबूत सकारात्मक धारणा बनाने के लिए व्यक्तित्व का विकास करना भी है, कैडेट्स को नेतृत्व कौशल सिखाना भी है, कैडेट्स को निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के लिए कौशल सिखाना भी इसमें शामिल है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question, dash development is developing a strong positive impression about self with the targeted group. A, mental status, B, physical self, C, personality, and D, overall development. And the right answer is personality. So व्यक्तित्व विकास स्वयं के बारे में एक मजबूत सकारात्मक धारणा विकसित करना है लक्षित समूह के साथ। Which of these has defined life skills as abilities for adopting positive behavior that enables individuals to deal with the demands and challenges of everyday life? WHO, UNESCO, UN और वर्ल्ड बैंक, यानी इनमें से किसने जीवन कौशल को सकारात्मक व्यवहार अपनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक? और सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। Next question is, what is the ability of adopting positive behavior that enables individuals to deal with effectively with the demands, challenges of everyday life called life skills, problem solving skills, personality development, or none of the above? And the right answer is personality development skills. सकारात्मक व्यवहार अपनाने की वह विधि जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम बनाती है, उसे कहते हैं जीवन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स डिपेंड्स ऑन? Understanding the situation well, understanding the problem, understanding the consequences of your choices, all of these, and the right answer is D, all of these. यानी सही निर्णय लेने का कौशल किस पर निर्भर करता है? स्थिति को अच्छे से समझना, अपनी पसंद के परिणामों को समझना, समस्या को समझना। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। WHO has defined life skills as adopting all negativity, adopting negative means to achieve it, adopting positive behavior, or accepting your incapabilities. And the right answer is adopting positive behavior. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशलों को कैसे परिभाषित किया है? तो उन्होंने इसे सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, how many core life skills are there in which help in enhancing the personality of an individual? 8, 5, 10 और 4, and the right answer is 10। यानी जीवन के 10 ऐसे प्रमुख कौशल हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं। What does practice and patience achieve? Value, life skills, self-awareness,
और none of these, and the right answer is life skills. अभ्यास और धैर्य से ही जो है वो जीवन कौशल को हासिल किया जा सकता है. Personality development is developing a personality so as to create strong positive impression about self, negative impression about self, admiring personality of others, or none of these. And the right answer is strong positive impression about self. व्यक्तित्व विकास का अर्थ है स्वयं के बारे में मजबूत सकारात्मक धारणा से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना. Which of these is the ability to establish positive relationships? Interpersonal skills, empathy और self development, and the right answer is interpersonal skills. इनमें से कौन सी सकारात्मक संबंध स्थापित करने की क्षमता है? तो वो है अंतर्व्यक्तिक कौशल यानी interpersonal relationship. What is self-development? Factors that influences one's personality, improving one's leadership skills, factors that influences others' personality, all of these, and the right answer is A. Factors that influences one's personality. तो आत्मविकास क्या है? आत्मविकास का अर्थ है ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं. The identification of a character, strengths and weaknesses, desires, likes and dislikes, and skills are called dash. Self-awareness, empathy, critical thinking और creative thinking, and the right answer is self-awareness. हमारे चरित्र, शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं, पसंद और नापसंद और कौशलों की पहचान हमारी आत्म जागरूकता कहलाती है. Next question is, which of the following is not a part of self-awareness? Own character, own weaknesses, own likes and dislikes, and positivity of others. And the right answer is positivity of others. निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता का हिस्सा नहीं है? स्वयं का चरित्र, स्वयं की कमजोरी, अपनी पसंद नापसंद या दूसरों की सकारात्मकता, और सही उत्तर है दूसरों की सकारात्मकता. Next question is, which is the complex of mental characteristics that makes each of us unique from other people? Hereditary, emotional tone, personality और character, and the right answer is personality. मानसिक विशेषताओं का वह कौन सा समूह है जो हम में से प्रत्येक को अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है? वो है अनुवांशिकता, भावनात्मक स्तर, व्यक्तित्व या चरित्र, और सही उत्तर है व्यक्तित्व. Next question is, ability to imagine what life is like for another person is called self-awareness, sympathy, empathy और values, and the right answer is empathy. दूसरे व्यक्ति का जीवन कैसा है इसकी कल्पना करने की क्षमता समानुभूति कहलाती है. Next question, every problem has dash, one solution, many solutions, some problems have no solution and part of life. And the right answer is many solutions. यानी हर समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं, एक से ज्यादा समाधान होते हैं. Next question is, empathy helps us to dash, move closer to solutions, resolve conflicts, enhance our quality of life, all of the above, and the right answer is all of the above. समानुभूति हमारी किस प्रकार सहायता करती है? समानुभूति से हम समस्या समाधान के करीब जाते हैं, समस्याओं का हल करते हैं. समानुभूति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Next question is, which of the following is not a component of empathy? Understanding the feeling of the people, seeing things from other people's point of view, thinking only about oneself, or putting oneself in someone else's place. And the right answer is thinking only about oneself. इनमें से कौन सा समानुभूति का घटक नहीं है? दूसरों की भावनाओं को समझना, चीजों को दूसरे के दृष्टिकोण से देखना, केवल अपने बारे में सोचना और अपने आप को दूसरों की जगह पर रखना. तो सही उत्तर है केवल अपने बारे में सोचना. समानुभूति में हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is not a characteristic of a creative person? Pessimistic, problems are emotionally acceptable, sees problems as opportunities, or challenges assumptions. And the right answer is pessimistic. तो इनमें से कौन सा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है?
और वो होता है निराशावादी होना। रचनात्मक व्यक्ति हमेशा आशावादी होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेता है, उसके बारे में सोचता है, इसलिए सही उत्तर है निराशावादी होना। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव फॉर्म में आता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, प्लीज उसको ध्यान से देखें और उसका उत्तर ध्यान से दें। Which life skill enables us to deal with problems in our lives in a constructive manner? Effective communication, decision making, problem solving, creative thinking, and the right answer is problem solving. इनमें से कौन सा जीवन कौशल है जो हमें अपने जीवन की समस्याओं से रचनात्मक तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है? प्रभावी संचार, निर्णय लेना, समस्या समाधान या रचनात्मक सोच? और सही उत्तर है समस्या समाधान। तो डियर कैडेट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही है तो YouTube पर मैंने चैप्टर्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखें तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली समझ पाएंगे। डैश विषय के मौजूदा ज्ञान के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से चयन करना है। प्रभावी संचार, निर्णय लेना, समस्या समाधान या रचनात्मक सोच? और सही उत्तर है निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी encompasses which all factors? An ability, an attitude, a process, all of the above, and the right answer is all of the above। क्योंकि रचनात्मकता के जो मुख्य कारक होते हैं उसमें क्षमता भी शामिल होती है, दृष्टिकोण भी शामिल होता है और रचनात्मकता अपने आप में एक प्रक्रिया है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव पर्सन इंक्लूड्स व्हाट ऑल क्वालिटीज? एबल टू सस्पेंड जजमेंट, सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज, comfortable with imagination, and D all of the above, and the right answer is D all of the above। रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? निर्णय को निलंबित करने में सक्षम होना, कल्पना के साथ सहज होना, समस्याओं को अवसर के रूप में देखना? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज डैश अ प्रोसेस? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फास्ट और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट इज कॉम्प्लेक्स। निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है। जब भी इंसान को कोई निर्णय लेना होता है हमेशा उसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत इजीली डिसीजन नहीं लिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीजन विच वी टेक वेरी ऑफन आर कॉल्ड डैश डिसीजंस? माइनर, मेजर, बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज माइनर। जो निर्णय हम अक्सर लेते हैं उन्हें छोटे निर्णय कहा जाता है। हमारी डे टू डे लाइफ के निर्णय होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन डैश? Understanding the situation well, visualizing the consequences of our choices, being aware of our choices, and D all of the above, and the right answer is all of the above। तो अच्छा निर्णय लेना जो होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, जिसमें स्थिति को अच्छी तरह समझना, अपनी पसंद के बारे में जागरूक होना, अपनी पसंद के परिणामों की कल्पना करना, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Which one is the most important factor in building a nation? Education, environment, self-development or values? And the right answer is self-development। किसी राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? और वो होता है आत्मविकास। जब कोई व्यक्ति आत्मविकास करता है तब वो सक्षम होकर अपने देश के विकास में योगदान दे सकता है। Next question, each person views himself quite different from how other people perceives him. It is called self-development, self-image, self-value or self-awareness, and the right answer is self-awareness। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से बिल्कुल अलग देखता है, यह आत्म जागरूकता कहलाती है। Next question, the country of our birth and the culture we have adopted all are critical factors that influences our personality. It is known as education, environment, life situations or personality, and the right answer is environment। हमारे जन्म का देश और संस्कृति हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, इसे डैश कहते हैं पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, our personalities have developed as a result of dash? Genetic inheritance, environmental influences,
learning, all of the above, and the right answer is all of the above. हमारे व्यक्तित्व का विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? उसमें आनुवांशिक विरासत भी शामिल होती है, पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होती है, हमारा सीखना भी शामिल होता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following things can have an effect on the development of an individual's personality? Physical and mental capabilities, skin color, gender and sexual orientation, health and physical appearance, all of the above, and the right answer is all of the above. यानी निम्नलिखित में से कौन सी चीज किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डाल सकती है? शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति, त्वचा का रंग, लिंग, यौन रुझान, या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Which of these is one of the biggest roadblocks we face during personality development? Perfectionism, critical thinking, sympathy और self development, and the right answer is perfectionism. यानी व्यक्तित्व के विकास के दौरान हमारे सामने जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो होती है पूर्णतावाद या perfectionism. Next question is, which of these is necessary for positive attitude towards life? Self awareness, self development, self realization, all of these, and the right answer is all of these. निम्नलिखित में से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए क्या आवश्यक है? आत्म जागरूकता, आत्म विकास, आत्मबोध या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिचुएशन इन लाइफ आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड दीज कैन इफेक्ट आवर पर्सनैलिटी इन डैश, सम डिग्री, वेरियंग डिग्री, प्रोफेशनल लाइफ ओनली और नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज वेरिंग डिग्री. यानी जीवन में जो परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और इनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर विभिन्न कोणों से पड़ता रहता है और हमारी जिंदगी उससे प्रभावित होती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वे वी ट्रूली आर इज कॉल्ड perceived self, real self, ideal self और all of the above, and the right answer is real self. हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही जाने जाएं, इसे कहते हैं कथित स्वयं. The process of determining the authenticity, accuracy of value of something is called creative thinking, decision making, critical thinking, both A and C, and the right answer is C, critical thinking. किसी चीज की प्रामाणिकता, सटीकता, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को कहते हैं आलोचनात्मक सोच. तो सही उत्तर है ग. Next question, when we escape from problems, we give up the opportunities to develop dash skills and potentials, true personalities, self-awareness, none of the above, and the right answer is skill and potentials. जब हम समस्याओं से भागते हैं तब हम अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के सभी अवसर खो देते हैं. In order to make the right decision, you must go through dash steps. Gather all the information pertaining to subject, overcoming selflessness, being consistent and precise, capacity to take risk, and the right answer is A. सही निर्णय के लिए आपको विषय से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करने के प्रोसेस से गुजरना होता है. Dash are the strongest factors that develop our attitude towards work and career. A. Past experiences. B. Dreams and ambitions. C. Both A and B, and D, none of the above, and the right answer is B, dreams and ambitions. डैश काम और करियर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को विकसित करने का सबसे मजबूत कारक है वो होता है सपने और महत्वाकांक्षाएं. हमारे काम और करियर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं. तो सही उत्तर है ख. Next question is, the main factor influencing or shaping our personality is called education, hereditary, past experiences, all of the above, and the right answer is all of the above. हमारे व्यक्तित्व को आकार देने वाले जो मुख्य कारक होते हैं उसमें शिक्षा, वंशानुगत और पिछले अनुभव शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Next question, which one is the component of empathy? A. To see things from the other's point of view. B. Analyzing the information and examining the details. C. Taking the issue on one's own shoulder. And D. Both A and C. The right answer is B. Analyzing the information and examining the details. यानी समानुभूति का जो घटक होता है वो होता है चीजों को दूसरे के दृष्टिकोण से देखना, इसलिए सही उत्तर है
A. Next question. Communication is sharing of dash ideas, opinions, thoughts, all of the above, and the right answer is all of the above. संचार का अर्थ होता है भावों को, अपनी राय को, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Next question. How many ways of communications are there? 2, 3, 4 and 5 and the right answer is 3. संचार के कितने तरीके होते हैं? तो संचार के 3 तरीके होते हैं. Next question. Communication is conveying a message dash. Verbally, written, use of signs, all of the above, and the right answer is all of the above. संचार के माध्यम से एक संदेश जो मौखिक रूप में भी, लिखित रूप में भी और संकेतों के रूप में भी पहुंचता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Next question. Without communication, our relationship with others are likely to be dominated by dash, suspicion, misunderstandings and false assumptions, guesses, all of the above, and the right answer is all of the above. संचार के अभाव में दूसरों के साथ हमारे संबंधों पर डैश हावी होने की संभावना होती है. संदेह, अनुमान, गलतफहमी और गलत धारणाएं, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी. Next question. Lack of communication breeds dash in our relationships. Problems, solutions, both can be, none of the above, and the right answer is problems. क्योंकि संचार की कमी हमारे रिश्तों में हमेशा समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए हमेशा लोगों के साथ संचार बनाकर रखना चाहिए ताकि आपके रिश्तों के बीच में समस्याएं ना हो. Next question is, different ways of communication includes dash, aggressive, पैसिव, असर्टिव, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि संचार के 3 तरीके होते हैं, आक्रामक, निष्क्रिय और मुखर, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, listening, all of the above, and the right answer is all of the above. इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का मुख्य घटक है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, श्रवण या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी. People who tend to dominate and put down others are called as aggressive, passive, assertive or none of the above, and the right answer is aggressive. जो लोग दूसरों पर हावी होने और उन्हें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें आक्रामक कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर है क. Next question is, while communicating, which type of people often lack facial expression and stand with downcast eyes? Aggressive, passive, assertive or none of the above, and the right answer is passive. किस प्रकार के लोगों में संचार करते समय अक्सर चेहरे पर भाव की कमी होती है और वे आंखें झुकाकर खड़े रहते हैं, और वो होते हैं निष्क्रिय. जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो निष्क्रिय या पैसिव होते हैं, और वही लोग दूसरों के साथ आंख नहीं मिलाते और नीचे देखते हैं. Next question is, people who are action oriented, attentive, vocal, expressive, good listeners, aware, supportive, persuasive, fair, open and consistent in behavior come under the category of aggressive, passive, assertive or none of the above, and the right answer is assertive. यानी जो लोग कार्योन्मुख, चौकस, मुखर, अभिव्यंजक, अच्छे श्रोता, जागरूक सहायक, प्रेरक, निष्पक्ष और खुले व्यवहार में रहने वाले होते हैं, ऐसे लोग मुखर की श्रेणी में आते हैं. Next question is, what includes such things as tone of voice, a nod of head, using silence, frowning, smiling, body posture, touch, shaking of heads to communicate, approval or disapproval, lifting of the eyebrows? A. Verbal communication, B. Non-verbal communication, C. Listening and D. None of the above, and the right answer is non-verbal communication. यानी आवाज का लहजा, सिर का हिलाना, चुप रहना या आपको शरीर के अलग अलग हाव भावों से जब अपनी बात को कहते हैं, उसे कहते हैं गैर मौखिक संचार. Which of these is a listening barrier? Interrupting the speaker, not maintaining eye contact with the speaker, rushing the speaker to complete what he has to say, all of the above, and the right answer is D, all of the above. इनमें से कौन सी सुनने में बाधा है? वक्ता को बाधित करना, वक्ता के साथ आंख से संपर्क न बनाना, वक्ता जो कहना चाहता है या कह रहा है उसे पूरा करने के लिए जल्दी करना. तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी listening barriers हैं. Effect of excess stress is dash,
physical, mental, both A and B, none of the above, and the right answer is both A and B. अधिक तनाव का प्रभाव जो होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर होता है, इसलिए सही उत्तर है A और B. नेक्स्ट क्वेश्चन, which step will help in reducing the communication gap? Plan ahead, listen to the suggestions made by others, involve others to contribute and planning all of the above, and the right answer is all of the above. कौन सा कदम संचार अंतराल को कम करने में मदद करता है? आगे की योजना बनाना, योजना में योगदान देने के लिए दूसरों को शामिल करना, दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों को सुनना, या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन बेस्ड. इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली. पेरेंट्स डिसाइडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ वेकेशन टू अ हिल स्टेशन आफ्टर डिस्कसिंग विद द चिल्ड्रन. व्हाट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन? वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, थ्री वे कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज टू वे कम्युनिकेशन. यानी जब माता पिता अपने बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियों के लिए जाने का तय करते हैं तो ये संचार का दो तरफा साधन या तरीका होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ बॉडीज रिएक्शन टू पीपल एंड इवेंट्स एंड टू आवर ओन थॉट्स. स्ट्रेस, द टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग, एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेस. तनाव लोगों और घटनाओं तथा हमारे अपने विचारों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टाइम रिपीटेड स्ट्रेस कैन डैश लोअर सेल्फ एस्टीम, क्रिएट अ साइकिल ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ डाउट, decreases academic performance, or all of the above, and the right answer is all of the above. क्योंकि बार बार का जो तनाव होता है उससे हमारे आत्मसम्मान में भी कमी होती है, हमारा एजुकेशनल जो हमारी शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी होती है, हमारे अंदर जो है वो सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? टेक अ डीप ब्रेथ, मैनेज योर टाइम, टॉक इट आउट, all of the above, and the right answer is all of the above. इनमें से कौन सी तनाव प्रबंधन तकनीक है? गहरी सांस लेना, अपना समय प्रतिबंधित करना, बात करना, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है. Which of these can help reduce and prevent stress? Watching movies, eating junk food, physical activity, none of the above, and the right answer is physical activity. इसमें से कौन सा कारक है जो तनाव को कम करने और रोकने में मदद कर सकता है? फिल्में देखना, जंक फूड खाना, शारीरिक गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है शारीरिक गतिविधियां, यानी फिजिकल वर्क जब आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस? कोल्ड और स्वेटी हैंड्स, टाइट मसल्स, back or neck problems, all of the above, and the right answer is all of the above. शारीरिक तनाव के जो लक्षण होते हैं उसमें इंसान को ठंडे पसीने वाले हाथ, कसी हुई मांसपेशियां, पीठ या गर्दन की समस्या, ये सभी होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is the sum of your knowledge including beliefs and thoughts about the world and yourself in it? Life skills, mindset, feelings, or etiquettes, and the right answer is mindset. इनमें से कौन सा आपके ज्ञान का योग है जिसमें दुनिया और उसमें आपके बारे में विश्वास और विचार शामिल होते हैं? जीवन कौशल, मानसिकता, भावनाएं या शिष्टाचार, और सही उत्तर है मानसिकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ पर्सन चेंज हिज और हर माइंडसेट? रोल मॉडल द बेस्ट पीपल, लेट गो ऑफ कंपैरिजंस, examine your current beliefs, all of the above, and the right answer is all of the above. कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता को हमेशा लोग सर्वश्रेष्ठ लोगों को आदर्श बनाकर अपनी वर्तमान मान्यताओं का परीक्षण करके दूसरों के साथ तुलना छोड़कर कर सकता है, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. The basic principle of time management is dash. Develop personal sense of time, identify long-term goals, weekly and daily planning, or all of the above, and the right answer is all of the above. समय प्रबंधन का जो मूल सिद्धांत होता है उसमें समय की व्यक्तिगत समझ विकसित करना, दीर्घकालीन लक्ष्यों की पहचान करना, साप्ताहिक और दैनिक योजना बनाना, सभी कुछ शामिल होता है, इसलिए सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी. Which of the following is not a time waster?
पेपर, टाइम लॉग, टेलीविजन, प्रोक्रास्टिनेशन एंड द राइट आंसर इज पेपर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये भी एक नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है और इसको समझने में गलती होती है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा समय बर्बाद करने वाला कारक नहीं है? पेपर, टाइम लॉग, टेलीविजन और टाल मटोल। पेपर समय को बर्बाद करने वाला कारक नहीं है, तो सही उत्तर है क यानी पेपर। Which of the following is not a basic principle of time management? Critical thinking, problem solving, time management, all of these, and the right answer is time management. निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का मूल सिद्धांत नहीं है? आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, समय प्रबंधन या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है समय प्रबंधन। Which of these improve productivity so that we can accomplish more with less efforts? Identify long-term goals, make use of committed time, develop a personal sense of time, be polite, and the right answer is make use of committed time. Next question is, what does time management help you with? Set and achieve your long-term goals, making good decisions, pay attention to physical comfort, none of these, and the right answer is set and achieve your long-term goals. समय प्रबंधन किस में आपकी सहायता करता है? अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is not a time waster? Procrastination, lack of planning, socializing, adequate sleep, and the right answer is D, adequate sleep. इनमें से कौन सा समय बर्बाद करने वाला नहीं है? टालम टोल, योजना का अभाव, पर्याप्त नींद या समाजीकरण, और सही उत्तर है पर्याप्त नींद। इंसान को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है। Next question, how does time management helps a person reduce or eliminate wasted time and efforts, improve productivity, improve performance while reducing stress? All of the above, and the right answer is all of the above. समय प्रबंधन किसी व्यक्ति की किस प्रकार सहायता कर सकता है? समय की बर्बादी को कम करना, उत्पादकता में सुधार करना, तनाव को कम करते हुए प्रदर्शन में सुधार करना, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। How can you improve your social skills? By being aware, by being cautious, by being polite, all of the above, and the right answer is by being polite. सामाजिक कौशल डैश सुधार सकते हैं, जागरूक होकर, सावधान रहकर, विनम्र होकर या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है विनम्र होकर। Which one of these is not a characteristics of good citizen? Sense of duty, service before self, self-service और patriotism, and the right answer is self-service. इनमें से कौन सा एक अच्छे नागरिक का लक्षण नहीं है? कर्तव्य की भावना, स्वयं से पहले सेवा, स्वयं सेवा या देशभक्ति, और सही उत्तर है स्वयं सेवा। What is the importance of etiquettes? Etiquettes makes you cultured, teaches you the way to talk, walk and behave in society, enable individuals to earn respect and appreciation in society, all of the above, and the right answer is all of the above. शिष्टाचार का क्या महत्व है? शिष्टाचार व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है, व्यक्ति को समाज में बात करने, चलने और व्यवहार करने का तरीका सिखाता है, व्यक्तियों को समाज में सम्मान और प्रशंसा अर्जित करने में सक्षम बनाता है, उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शिष्टाचार के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। Which of these is not a character trait of personality? Problem solving, loyalty, courage or responsibility? And the right answer is problem solving. इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का चारित्रिक गुण नहीं है? समस्या समाधान, वफादारी, साहस या जिम्मेदारी। सही उत्तर है समस्या समाधान, क्योंकि वो लाइफ स्किल है, हमारा चारित्रिक गुण नहीं है। Which of the following includes the way to conduct a certain business? Corporate etiquettes, meeting etiquette, business etiquette, none of these, and the right answer is बिजनेस एटिकेट। निम्नलिखित में से किसमें एक निश्चित व्यवसाय संचालित करने का तरीका शामिल है? वो है कॉर्पोरेट शिष्टाचार, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू और मोर पीपल हु आर इंटरडिपेंडेंट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम आर कॉल्ड टीम, ग्रुप, सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज टीम। दो या दो से अधिक लोग जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और परिणाम के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं, वो हमेशा टीम कहलाते हैं। What is an inner urge of excellence?
Should be a dreamer like parent of a child or like a teacher for a student. Cultivate a sense of mission in the studies, profession and family. Has an exciting vision on which you can be easily communicated and shared with others. All of the above. And the right answer is all of the above. क्योंकि उत्कृष्टता का जो आंतरिक आग्रह होता है वो एक व्यक्ति को एक बच्चे के माता पिता की तरह, एक छात्र के लिए एक शिक्षक की तरह सपने देखने वाला होना चाहिए। अपने अध्ययन या पेशे और परिवार में मिशन की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति के पास जीवन के लिए एक रोमांचक दृष्टिकोण होना चाहिए जिसे वो आसानी से दूसरों के साथ संप्रेषित और साझा कर सके। इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Which of these is a small number of employees with complementary competencies? Team, group, यूनियन, ऑल ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज टीम। इनमें से कौन सा मानार्थ योग्यता वाले कर्मचारियों की एक छोटी संख्या है? टीम, समूह, आकस्मिक या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है टीम। Any number of people who have common goals are called group, team, section or none of the above and the right answer is A, group। जितने भी व्यक्ति समान लक्ष्य साझा करते हैं उन्हें समूह कहा जाता है। Next question is, which of these is a type of team? Functional teams, problem solving teams, cross functional teams or all of the above and the right answer is all of the above। इनमें से कौन सा टीम का एक प्रकार है? कार्यात्मक टीम, समस्या समाधान टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is, which team brings together the knowledge and skills of people from various work areas to identify and solve the mutual problems? Functional teams, problem solving teams, cross functional teams or self managed teams and the right answer is problem solving teams। कौन सी टीम आपसी समस्याओं को पहचानने और हल करने के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान और कौशल को एक साथ लाती है? और वो होती है समस्या समाधान टीम। So which of these is a task group? Formal group, informal group, effective group or all of the above and the right answer is formal group। इनमें से कौन सा एक कार्य समूह है? औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, प्रभावी समूह, उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है औपचारिक समूह। Next question is, what are the characteristics of an effective group? The members know why the group exists and they have shared goals. Its members support agreed upon guidelines. Its members communicate freely among themselves, all of the above and the right answer is all of the above। क्योंकि एक प्रभावी समूह की विशेषताओं में सदस्यों को पता होता है कि समूह क्यों अस्तित्व में है और उनके एक दूसरे के साथ साझा लक्ष्य हैं। उसके सदस्य सहमत दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, हर चीज के लिए एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं। इसके सदस्य आपस में स्वतंत्र रूप से संवाद करते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the most flexible and convenient way to make an application? CV, file, printed paper, none of these and the right answer is CV। यानी प्रार्थना पत्र बनाने का सबसे लचीला और सुविधाजनक तरीका होता है CV। जैसे आपने सुना होगा आजकल और जैसे जैसे आप आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ये वर्ड आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। Which of these points should be kept in mind to improve public speaking? Stage presence, body language, delivery, all of these and the right answer is all of these। यानी सार्वजनिक बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए इनमें से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाना चाहिए? मंच पर उपस्थिति, शारीरिक भाषा, वितरण और उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी क्योंकि इन सभी की आवश्यकता होती है। How many stages does the SSB procedure have? 1, 2, 3 और 4? The right answer is 2। SSB प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 2। How many days does the SSB procedure take? 14 days, 5 days, 6 days or 7 days and the right answer is 5 days। SSB प्रक्रिया में 5 दिन लगते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, which of these is a GTO task? GPE, PGT, IoT, all of these and the right answer is PGT। इनमें से कौन सा GTO कार्य है? वो है PGT। तो सही उत्तर है ख। Next question is, which of these is a psychological test in which pictures are shown during the SSB procedure? TAT, WAT, SRT और SD and the right answer is A, TAT। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें SSB प्रक्रिया के दौरान चित्र दिखाए जाते हैं? और वो है A, TAT। Next question is, dash is a
advice or training on issues related to a person's career? A. Counseling, B. Career counseling, C. Both and B, and D. None of the above. And the right answer is B. Career counseling. डैश इस व्यक्ति के करियर से संबंधित मुद्दों पर सलाह या प्रशिक्षण है। काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, और सही उत्तर है करियर काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पब्लिक स्पीकिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस मस्ट मैच डैश यू आर डिलीवरिंग, पोस्चर, स्पीच, मैसेज और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। And the right answer is speech. सार्वजनिक भाषण में हमेशा आपके चेहरे के भाव आपके द्वारा दिए जा रहे भाषण से मेल खाने चाहिए, इसलिए सही उत्तर है बी, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू आउट द एंटायर इंटरव्यू रिस्पॉन्ड विद डैश टेक्स्ट एंड हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंसेरिटी और नॉलेज। एंड द राइट आंसर इज कॉन्फिडेंस। तो पूरे साक्षात्कार के दौरान आपको आत्मविश्वास, चातुर्य और उच्च स्तर की रुचि के साथ उत्तर देने होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ए, आत्मविश्वास। Next question is, being chosen for an interview means that someone is interested in your dash knowledge and experience, personality, skills, looks or marks scored, and the right answer is personality. साक्षात्कार के लिए चुने जाने का मतलब है कि कोई आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव में रुचि रखता है, इसलिए सही उत्तर है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसएसबी में स्टेज 2 परीक्षण के व्यक्तिगत व्याख्यान में प्रत्येक उम्मीदवार को डैश विषय मिलते हैं, जिसमें से उसे एक विषय का चयन करना होता है और उसी पर 3 मिनट तक बोलना होता है। 4, 2, 3 या 5, और सही उत्तर है 4, यानी उसे 4 विषय मिलते हैं, उनमें से एक विषय पर उसे 3 मिनट तक बोलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कम्युनिकेटर्स आर एक्टिव लिसनर्स एंड चेक ऑन अदर्स फीलिंग्स, ग्रेट, स्मार्ट, assertive और aggressive, and the right answer is assertive. मुखर संचारक सक्रिय श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं की जांच करते हैं, इसलिए सही उत्तर है सी, मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आस्किंग द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, what gives you life meaning and purpose is one of the means to find your voice, goal, interest or matter, and the right answer is वॉइस। तो ये है आपके 100 MCQs, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने ये 100 क्वेश्चंस कर लिए तो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं, आप ज्ञातवा पर जाएं और सारे वीडियोस को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।